Bharat 24, the vision of New India, the fastest growing Hindi news channel. First India News, the top news channel of Rajasthan. First India, the English daily and opinion maker. And one man behind it all, Dr. Jagdish Chandra. Dr. Jagdish Chandra, who has transformed the world of media with his out-of-the-box thinking and revolutionary ideas, also helps the JC Show, a one-of-its-kind mega show which draws crores of viewers as Jagdish Chandra holds forth on the political and social dynamics of the nation and leaves the audience gasping with his in-depth observations, accurate analysis and his penetrating understanding of the very pulse of Bharat. Dr. Jagdish Chandra has played pivotal leadership roles in ETV and Zee as the CEO and holds the record for the longest serving CEO in the history of media. Be it ETV or Zee or First India or now Bharat 24, JC's life is dictated by 1 month. Khabar hi Jeevan hai. Prime Minister Narendra Modi gave his first interview after being declared as the Prime Minister candidate in 2014 to Dr. Jagdish Chandra. 10 साल आपने इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ओम माथुर, योगी आदित्यनाथ, Mamta Banerjee, Hemant Biswa Sarma, Nitish Kumar. The list is endless. When the political stalwarts and bureaucrats have sat across from Jagdish Chandra, reaching out to the nation from the platform of the JC Show. Across political boundaries and leaders, JC has touched and deconstructed the synthesis of the landscape. As India celebrated the landing of the Chandrayaan-3 on the moon, Jagdish Chandra gave words to the emotions and pride of each Indian. सचमुच ये एक चमत्कार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रयान सफलता से सारा राष्ट्र गदगद है। The special JC show on the passing of the Women Empowerment Bill was a festival of the upliftment of women, their sense of self-worth, which saluted the fulfillment of a long-standing dream of increasing women's participation in politics. नरेंद्र मोदी केवल महिला आरक्षण नहीं बल्कि संपूर्ण वुमेन एम्पावरमेंट के एक मसीहा के रूप में उभर के सामने आए हैं। As far back as 2019, in the Lok Sabha elections, Jagdish Chandra predicted 303 seats for the BJP. 280, 85, 288 पे आ जाए तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ। And left the nation and the media community speechless with his bang-on analysis. The JC show is washed across as one and all, from the heavyweights of the political parties to the Bollywood stars, sit across from Jagdish Chandra and open their heart, succumbing to the magic of JC. The one thing which makes the JC show so uniquely popular among the public, regardless of age, caste, creed or community, is Dr. Jagdish Chandra's connect to the people of India, to the thoughts of the people, to the pulse of the nation and to the ethos of the pride of being Bharati. The JC show trends across social media platforms, notching digital viewership across all walks of life. Yes, the JC show telecast on Bharat 24 Vision of New India and First India News remains one of the most watched and talked about television shows in the history of Indian media. The one and only, the JC show. सर ऐसा कैसे कि एक हिंदू सम्राट कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी मुस्लिम राष्ट्र में भी इतने ही पॉपुलर हो गए? जैसे मैंने कहा ना, इट्स वन मोर मिरेकल, इट्स गॉड गिफ्ट टू हिम। जहाँ भी जाते हैं लोगों से एक रिश्ता नाता जोड़ लेते हैं, आप देखिए। और इसीलिए संसार के किसी भी देश में जब वो जाते हैं तो अनहोनी घटनाएं होती हैं। एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि आप बॉस हैं, एक कहता है मुझे फ़ोटोग्राफ दीजिए, एक व्यक्ति पाँव छूता है, उसी का एक्सटेंशन है ये। अरब में जो यूए में जो कुछ हुआ है उसी का एक्सटेंशन है ये। आप देखिए वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार, लोगों में उत्साह, और जितने लोग वहाँ पे थे भारतीयों के अलावा भी उनमें उमंग उत्सुकता का एक माहौल देखने का कि मोदी जी कैसे हैं, मोदी कैसे हैं, वहाँ मोदी कहते हैं।
कि मोदी आए हैं, मोदी कैसे हैं ये। तो विचित्र है, विचित्र किंतु सत्य है कि मुस्लिम राष्ट्र में नरेंद्र मोदी का इतना मान सम्मान, निश्चित तौर पे यह है विचित्र किंतु सत्य। सर, इस दौरे में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि बहुत खास थी। इन्हीं में से एक ही अबू धाबी एयरपोर्ट पे वहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद प्रोटोकॉल तोड़ करके पहुँचते एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये दोनों के लिए नया नहीं, ये प्रोटोकॉल तोड़ के जो है 2017 में जो है कि 2019 में जो है यहाँ पे जो रिपब्लिक डे था उन पे उनको बनाया, उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया जो है। 4 बार वो आगे 2016 के बाद में 7 बार ये जाके आ गए। ये जब भी जाते हैं एक दूसरे का प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, मिलते हैं। ये इनकी केमिस्ट्री है, बियॉन्ड फॉरेन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। आप देखिए तो कुल मिला के 4 बार ये हो गए, 7 बार ये जाके आगे। वहाँ पर तो एक सम्मान और एक इस तरह का जो रैपो होता है ना आपस में, इस तरह का इनका बना है। एंड दिस इज़ ऑल। और चूंकि जब हम बात सनातनी रंग की करते हैं और इस समय अबू धाबी में जो रंग नजर आ रहे हैं उसके लिए जो वन लाइनर है वो यूज किया जा रहा है, अ न्यू क्रेज इन अरेबियन ड्यून्स, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या एब्सोल्युटली करेक्ट। नरेंद्र मोदी इज ए न्यू क्रेज इन अरबियन ड्यून्स, अरबियन वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड। ही इज़ ए ग्लोबल लीडर, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है। जितने लोग देश में उनको पसंद करते हैं उससे ज़्यादा लोग विदेश में उनको पसंद करते हैं। दुबई यूए के इतिहास में पिछले 15 वर्षों में ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया दूसरे देश से जिसका स्वागत, सत्कार, मान सम्मान नरेंद्र मोदी जैसा हुआ हो। और इसका कारण ये है कि एक क्रेडिबिलिटी है नरेंद्र मोदी की। वहाँ के लोग दिल से चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है यूएई में, जो प्रकट हुई पिछले 3 दिन की इस यात्रा में, जिस तरह से सारा राष्ट्र जिसे कहना चाहिए, एक्चुअली ऐसे मोदी में हुआ था जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होता है। तो इन सब घटनाओं को देख के निश्चित तौर पे कहा जा सकता है ये कि अरब के रेगिस्तान में एक आशा की किरण है, एक ताज़ी हवा का झोंका है नरेंद्र मोदी। दैट्स ऑल।